Scrims, and I also know that a lot of teams have picked up a coach pretty much last minute, but that can have a pretty drastic impact on your team and how you approach and visualize the game, right? I think that can have a pretty big impact, like talking about VIVO Key. They qualified above teams like Influence Rage, Alpha 7, which is even Loops, which is very, very impressive. So I've had the chance to cast them a little bit over in the Western tournaments and like Americas. I think they have the chops to do well on an international event. Unfortunately, we'll have to see how it's going to go because we've never seen it before, but I think there's a chance that VIVO Key could be like a dark horse almost heading into this. Okay, actually, Flores, do you have a dark horse that you're looking at? I mean, it's kind of up and down. I guess I would have to pick a team like Morph. They come from a great region. I did expect other teams to qualify from that region, like RRQ, for example. But they showed that they're able to hang with the top teams there. So maybe they can make something happen in this lobby, even though I'm favoring the big dogs overall. Okay, yeah, and considering, again, we have 18 matches, right? And you're talking about like getting accustomed to the lobbies, you don't have time. And we have actually seen, like you mentioned before, a lot of coaches coming in, a lot of really well-known coaches, some maybe on Nova X Quest F, the ones who have been able to take home POC. Like, how much can a coach realistically offer you when you've only had, I guess, maybe a little bit of lead up into the event, but you only have 3 days of play? It's really hard to make drastic changes to how the lobbies play out. I mean, in terms of gameplay, of course, you've got a lot of research and work that's been done in the background. I think it's mostly getting the players and the teams in the mentality, because a lot of the coaches that have been picked up by these teams have that experience. They know how it works out. They know how the teams adapt to it. And I think just telling them how it's going to happen and how it's going to go down is really good for the mental state. Like, they seem more prepared heading into this. All right, well, ladies and gentlemen, we're going to be getting into our first match shortly here, but I want to give a shout out here to Sony with the Play to Win with Xperia 1 IV, created in collaboration with professional esports players. You know it's going to be good. The Sony's Xperia is the official smartphone provider and partner here of Pubg Mobile. But as you saw before on the schedule, we do have Erangel coming up here in just a few moments to kick things off this event. High fives going out. At least air high fives as well here. But it's time to bring in our commentators. Maybe have a little chat with them before the match kicks off here. We got John Allen and Blank joining me here on the desk. Gentlemen, this is going to be crazy. It's be exciting. Maybe you have some teams you want to point out. I'll leave the floor open to you. Thank you very much, Jason. Yeah, we're going to be getting into this first game, Blank. There's a lot of teams here with a lot on the line. There is, yeah, and Jason was asking, you know, is there any other teams that maybe we're looking at? I think there's one team that maybe the guys on the desk haven't mentioned yet that I'd love to talk about, and that is actually Vampire Esports. I do think that this team currently looks extremely good as a team overall. You know, they've been through a lot of different iterations of Victim Sovers at the start of the year into Victim 365. Then Aton Esports in their qualifier for the Spring 22 finals, and now finally coming through, you know, now as Vampire Esports. So, oh no, they were Power AAA right at the beginning. Sorry, that's Morph GGG I'm talking about. But they've gone through a lot of iterations. They have now Corpai on the team, who used to be on Power AAA when they had some of their better games. He's coaching, so they're talking about coaching on the desk as well. This could be a great position for them. Yeah, absolutely. It's going to be looking pretty strong for them right now. Everyone loading up into the game. I think we've got the plane path of the first game, maybe. Loading on up here, Blank as well. You can see the players in the lobby. Look at that. They're running around. They're trying to get everything sorted. Those furtive glances over the shoulder there. Something going on. Yeah, no, just trying to get people into the match, and already we are having things kicked off here in the PMWI, this regional clash between so many different players from so many different countries here. It's great to see the representation. There's no problems either because everyone's playing here at LAN. Game number 1, loading on up. Erangel as we kick things off here. Players loading on things off here over as it fades into the map. Players loading on things off here over. It all fades into the map. The plane. Players loading on things off here over. The plane here. It all fades into the map. Players loading on things off here over. Heading just under Novo up towards Ganka. Now this is a fantastic little drop spot already for Stalwart. I'd imagine they're going to be dropping out the plane here, but it's Aton jumping out almost immediately, heading up possibly towards Mill to Power. That's a drop spot that they've been loving recently. Rozok, on the other hand,
quite inaccessible, and that was going to be quite the big hot drop for a lot of teams like Donuts heading up there, a few other teams on that location with Damwon, Kia just underneath them in Skull and Abs, but you can see there Stalwart already immediately in Nova Rudnoya. Sometimes they will head towards North Sosnovka, but this is their preferred drop, and this is great for an 18-man lobby, John. Yeah, and then Wildcats as well over on that military base, joining them on that South Island. Those northern crossings may be a little bit more populated, do you think, after those bridges with this plane path as south as it is. Some teams will try and migrate north shore, but that traffic jam will certainly have an impact. Yeah, you're just trying to cover as much of the map as possible. You know, James, Max, Jason on the desk, all talking about this beforehand, saying that, you know, there is going to be a lot of space on the map that you're going to have to cover. Not so many scouting positions now can be taken for these teams, just in the early game at least, just in case you get caught off guard by a team that's in the vicinity that you maybe wouldn't think would be there before. Though we do have Vampire Esports, they are doing their usual drop down towards Ferry Pier, Quarry and Primrose, really taking things wide at the beginning of this game. Yeah, a little bit of a late dropout, sure, but it was fairly close by to the plane path, right? So they will have plenty of time to be able to navigate and get things sorted for themselves moving forwards on their northerly movements that will have to come through as the circle pops. So it looks like Falcon already in competition with Morph. The top of the hill currently occupied by Morph. Yeah, it's going to be quite difficult here for Morph to actually... well, it's very easy for Morph to pick up on this one because Falcon's drop is a little bit further up towards Yaz, honestly. So Morph drop out early, get the catch on Falcons. Already taken one player from alone down here. Does get res back up into the fight, though. So not quite elimination coming through just yet. But Donuts USG actually currently have 2 points already. Yeah, they're starting to pop off. I mean... Looks like they've managed to find themselves a little bit of a spot. Falcons, as we're talking about, res up in a little bit of cover. Presence known, though, between those two teams on that split area. Never alone. Has his team. Seems to play to the name. But look at this. You've got Box Gaming with some trouble. Yeah, Box dropping right on the coastal side, and it's VGS trying to pass by them in vehicles. Now, VGS have 2 spots. It's up towards Severny as their secondary, Lipovka as their primary. Not able to get to any of them. So this is so awkward, but this is now time for Box to try and show some dominance. They regrouped around Break and Soaz after their decent PMGC. I think it was World League. Now they really need to show their stuff here after losing a couple of players and reforming. Nearly perfect name there coming through from Break, but doesn't quite get the knock. They will have got that hit marker, that indication that there's a player close. They know there's a vehicle moved. Well, they still know that there's a player this close. Mini 14 with the 4X on the off angle for VGS. Should be pretty solid at holding down this ridge line, but if 3 players from Box go down, it's going to be tough. Around the side, though, gives away the position, and it's an easy spray down for Box Gaming to pick up their first elimination of the game. That's a really sick just run around there from the team. Very fantastic stuff overall. VGS just crumbling, obviously not able to get either of their drum spots in this game, and they just fumble for it. This is what the 18-team lobby does to you. You know, you try and head to a spot you think may be free, but it's just not. Still bleeding out VGS down to 2. They will be taken on out. Donuts, they were contesting as well. Nigma Galaxy taking early losses. These are the 2 points that you were pointing out earlier. Yep. Yeah, that is rough there. But USG, honestly, this is a team that really wanted to take Rozhok. You know, in all the practice games you see them play before this, they have always gone Rozhok here. Just looking at anything on my drops in terms of statistics, you know, 4 Rivals was the other team that was going to head over here. But in fact, you know, Nigma Galaxy tried to challenge out. Usually they're the Pachinki team, so maybe they dropped just slightly short. USG had to go a little bit further. And just on the way, they picked up a couple of points. You love to see it. Yeah. Certainly if you're a USG fan. Falcon, 4 players in a vehicle. Not advisable. They're heading towards Yasnaya Polyana as well, which is currently occupied by Morph. On this northern rotation, they are behind the game. Morph on the western side of Yasnaya right now. They will be holding down a lot of those buildings, a lot of those compounds. Hopefully they get to spot the Falcons' approach, right? It's a very open field. If you're looking that way, you will be seeing them. They're only in 1 vehicle as well, which means that if you're taking some pot shots, you might even be able to get a couple of eliminations there.
Absolutely. I mean, there's a real chance for it. Now, VGS, you know, broken and battered, heading up still past Damwon Kia, who've still gone for that apps school split. It's a little tighter this time, though, and I respect that from Damwon Kia. James on the desk was talking about, you know, how really they wanted to keep things survival-based. Get towards the end of the game. It's not about huge eliminations, just consistently putting up those placement points. Now, that's going to give you a good average point over in the PMWI, but 3 days, you do need to strike out a little bit. Donuts USG getting these initial 2 points and also claiming Rozhok straight away. This is fantastic for them. And Donuts USG, they've come out on top in Japan at the moment. Even in the PUBG Mobile Showdown between Korea and Japan, they were a full 10 points ahead of anyone else in that lobby right at the top. So really fantastic stuff from Donuts USG so far. Hopefully spinning around, turning their opponents' heads whenever they can. Morph, I think they have spotted Falcons. Falcons, you can see, still with a little bit of damage on board. That might have been from earlier, probably still healing that one up. Never Alone was the player who was already knocked by the enemy team. I don't know if it was Morph, actually. I have to go back and watch that again. But Falcons did get knocked. Oh, it was Morph from up the hill. Yeah, that was the first engagement that they had. So they did already do a little bit of damage. It looks like they will not leave each other alone for now. VGS down to 2 players. They've spotted back-to-back on the ridge line. It looks like, yeah, back-to-back just want to take up position. Yeah. And see whatever vantage points they can try and claim. This is fairly interesting as well because REGAN.S trying to head in the direction of Morph. These are 2 teams that drop in Yasnaya. REGAN.S with a Yasnaya South Kameshki split, but Falcons trying to take up this position as well over in Yasnaya. So a lot of contention on this eastern side of the map. I know that, you know, 52 Esports, they've tried to take Stalba and then South Yasnaya as well before, but right now they're right on the western coast at the moment. Yeah, I mean, it seems like they've changed it up. I mean, to be fair, there have to be some changes, right? In this lobby, it's a new mode that these teams won't have played with 18 teams in it, right? It is seemingly a small difference, but it absolutely will have an impact, as the desk covered previously. So we'll have to see what impact that actually has, because right now, we haven't seen much more than 1 or 2 hot drops, right? Well, what I will say, you know, is that people have been very stubborn on their drop spots. And even just from the small research that I was able to do, I say small, no, modest, small research they were able to do about their drop spots beforehand in this tournament, you know, a lot of these teams have gone for these drop spots regardless of how south that playing path was. So, you know, we could have this gentleman's agreement going on from a lot of these teams. It's like, these are our spots, we can't go away from them. So secondary spots just really aren't too available anymore. And for that reason, if you get a really, really bad playing path, you could be in for a very bad game. The playing path on this one was very south, and the circle did shift up north. And I'm looking at the teams that have made that journey north early, and I'm looking at 4 rivals, right? All the way up in Severny. Right at the top of this circle now, playing from their northern bastion. Stalwart Esports on the southeast of the circle, just about crossing in. One of the favorites of this tournament right now, Blank. Yeah, absolutely. Like, I don't have too many notes on this team just because they play things so clean, and there's only so many ways you can write clean, to be honest with you. So I was very, very impressed with Stalwart. I think so is the desk. You know, they're set for a fantastic PMWI, but we could see some rising stars and rising countries just come out of nowhere and blast them out of the water, but we'll have to wait and see here. But for Stalwart, so far, things have been very good. I really do like this Novo drop for them in the beginning here. The edge of the map with 18 teams, it's going to be rough. There's not a lot of positions to play in, and with the loot that you get on board from Novo, with the 6 to 7 med kits that we saw already on just one of their players, you know, they'll be able to outlast that storm on the edge. You'd hope so, with the caliber of teams that we're dealing with anyway. Although that works to their detriment as well, doesn't it? I mean, they have to face off against this super high caliber lobby. It's not going to be easy. Aton take up the gas station. That's out to the west of Yasnaya Polyana. And Morph looking their way. Yeah, so Morph just on that western road, right, with
Aton just underneath them. And that's dire. For Morph, that being their original spot, they've actually moved west here towards that northern coast. So, you know, they're just looking out for any cheeky teams that try and hold on this north coast. And it's a great idea as well, because it's a very easy position to corner and cause mayhem from many teams, because you don't really want to cluster around this southern edge. There's so much space up towards Severny, especially with that southern playing path. This is a great position to, you know, take up and just chill out, take some time for yourself, especially if you dropped in South George. Like some of the teams, in fact, we've already seen TJB move up. Vampire Esports might want to head up there, so will 52 just in the South George bridge right now. So Morph could get a lot of points just from this singular position. I'm looking at USG as well, right? You talked about earlier in the game. It's great. They've managed to get Rozhok. They've managed to lay claim to that area. But if they don't leave there early enough, it could prove to be their tomb, their mausoleum, right? If they aren't able to get across early enough, if it's a northern shift, they could really be scuppered. Oh yeah, I mean, you can take every one of these teams and just imagine that they're elastic bands. And USG is that first elastic band, and you know when you create that elastic band ball, at some point it is going to break and explode, and poor USG is right in the middle. They are going to just get bigger elastic bands. Certainly have had that opportunity, probably more so than most of these other teams. Morph had to move a lot at the start. I mean, Nigma Galaxy might have had that opportunity, but unfortunately they lost two. They certainly have had that opportunity, probably more so than most of these other teams. Morph had to move a lot at the start. I mean, Nigma Galaxy might have had that opportunity, but unfortunately they lost two players early. Ooh. For Rivals, jetting down from the north side. You absolutely would as well. I mean, this is a great time for them. You know, you get such an awful playing path. You head up all the way to Severny, and the circle just continues to move north and north and north. And now at this point in time, they were being quite passive, but with this shift, they are absolutely sending it down into the circle, trying to take a position as fast as they can in one of the compounds. But it's TJB that's rocking up on 4 Rivals who've just come to this position. GK first leading the charge, getting first opening and doing it brilliantly. Living up to the name, first elimination for the TJB squad now for Rivals. In the corner, backed up to the back building here. The height advantage in favor of TJB. Morph over the ridgeline as well. Watch out for that scout. Watch out for the third party if this fight goes on too long. The off angle is there for 4 Rivals. You can see that in the minimap on the top right. They have got those sightlines to control, but Lin's moving forwards as well, putting pressure on 4 Rivals, forcing them out of this compound, of this cover. They want दिए जा चुके हैं, नेट थ्रो करते हैं, मजीद स्मोक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है फॉर राइवल के प्लेयर्स की तरफ से। दोनों के दोनों प्लेयर्स अलग हैं, एक दूसरे से नॉक होते हैं, तो रिवाइवल का कोई चांस भी मौजूद नहीं है। हाउएवर बैक एंड के ऊपर फॉर राइवल्स के एक और खिलाड़ी आते हुए बैक एंड पे जो प्लेयर है उनके ऊपर जाते हुए, लेकिन एग्रेस हो चुका है। टीजीबी बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर बिल्डिंग कर चुकी है। फॉर राइवल्स के स्क्वाड पर जंपर मौजूद है, अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिशें की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवल निकाल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुलेट स्टैग नहीं करेंगे। स्कारल का भरपूर तरीके से इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली काफी हद तक लो हो गए, एंड देयर गोज द नॉक, एलिमिनेट भी हो जाएंगे इंस्टेंटली। टीजेबी बहुत अच्छी, जस्ट लुक एट द फॉर्मेशन अलादीन, क्या खूबसूरत फॉर्मेशन है। थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करिए कि क्या फायदा हुआ इस फॉर्मेशन का। देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये हुआ कि आपके पास एक ऑफ एंगल प्लेयर मौजूद था, जहाँ से उसने आपको एक एडवांटेज इस तरह से दिया कि जहाँ टीम सारी की सारी फोकस्ड एक जगह पर फाइट लेने पे थी कॉम्पाउंड की तरफ, वहाँ पर आपने एक डिफरेंट एंगल से जब नॉक्स निकाले और आपने देखा कि टीम की तरफ से 2 नॉक्स आई बिलीव निकाले गए, एक कंफर्म किया गया, एक नॉक निकाला गया। सो ये चीज़ उनको एडवांटेज दी जाती है मैं कहना चाहूँगा इस पूरी फाइट के अंदर। और अब देखें 4 राइवल्स फॉल बैक कर चुकी है, फॉल बैक करते हुए इसी के साथ साथ हमें जो है वो किल फीड के अंदर एक और टीम सोल इस बार जो है फाइट लेते हुए नजर आ रही है। टीम 4 राइवल्स का बिल्कुल भी किसी भी तरह की फाइट में नहीं आना, अगर इनके ऊपर कोई स्लैम इन आ जाता है तो डेफिनेटली इनकी एलिमिनेशन हमें जब दिखाई देगी जरूर। साथ ही साथ अगर बात करें दोस्तों, पहली टीम हमें जब लॉबी जाते हुए नजर आई, जो कि टीम वो टीम थी जो कि जिसने सबसे पहले ही अपने 2 प्लेयर्स गवाए थे, टीम निग्मा गैलेक्सी। लेकिन वहीं पर डिफरेंट फाइट हमारे सामने इनिशियलाइज होते हुए टीम एसपी के सामने
40 मौजूद, स्प्रे दिया जाता है काफ़ी शानदार और यहाँ पर नॉक निकालने में हो जाएंगे कामयाब। स्क्राई किल कंफर्म करना चाहते हैं बट वहीं पर उनको थोड़ा सा डैमेज भी पड़ता है। टीम STE उनको सर्कल के अंदर थोड़ा सा एग्रेस करना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही सर्कल शिफ्ट खाता है यहाँ पर मजीद फाइट के अंदर जो फाइट को लंबा करना प्रॉब्लमाटिक बन सकते हैं उनके लिए, क्योंकि जोन में बहुत सारी टीम्स उनका इंतज़ार कर रही हैं ऑलरेडी कि वो यहाँ से इस फाइट को छोड़कर जोन की तरफ आएँ और वहाँ पर इनको किसी भी तरह से जो प्रॉब्लम का या फिर किसी भी तरह से नुकसान जो है वो भुगतना पड़े। बिल्कुल, और वाइल्ड कैट्स मौजूद है हमारी स्क्रीन पर, बिल्कुल ब्लू जोन के एज पर मौजूद रहने वाले हैं। अभी के लिए सेफ हैं लेकिन ज़्यादा सेफ नहीं है क्योंकि बिल्कुल एटॉन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर सामने की तरफ मौजूद रहने वाले हैं। उनकी तरफ से भी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आई थिंक सो रिट्रीट बैक करेंगे लेकिन इनकी बैक साइड के ऊपर वन ऑफ द डेडलीस्ट स्क्वाड टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स रिप्रेजेंटिंग साउथ एशिया मंगोलिया रीजन, कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से ज़्यादा थर्ड पार्टी किल्स स्कोर किए जाएँ। थर्ड पार्टी के अंदर आपको बहुत एलिमिनेशन स्कोर होती हुई नजर आएंगे लेकिन TJB अभी तक उसी रिज को होल्ड करती हुई उन्हीं कंपाउंड्स के नज़दीक इस फाइट को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सर्कल कुछ ही देर के अंदर क्लोज होने वाला है, 15 मोर सेकंड्स टू गो और 5th फेज ऑफ द सर्कल हमारे मैच में आ जाएगा। लेकिन रिवर पर आ चुकी हैं ये टीम्स, रोजॉक के करीब जो रिवर साइड रहती है टीम्स अपनी व्हीकल लेकर आ चुकी हैं एंड 52 के फेरो भी इस जगह पर आ चुके हैं, बगी के अंदर मौजूद हैं। अपनी सीट भी उन्होंने शिफ्ट की, कोशिश करेंगे कि कुछ फ्रैग्स स्कोर करने में कामयाबी हासिल की जाए लेकिन एटॉन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स बैक एंड के ऊपर कुछ किल्स स्कोर करने में कामयाब। टीम RSG बिल्कुल सामने की तरफ मौजूद है। REGAN.S इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, इनके फैंस भी और हम लोग भी ऑब्वियसली। डोमिनेशन इन्होंने दिखाई है पेल रीजन के अंदर लेकिन देखते हैं अभी के लिए दोनों टीम्स के चारों प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं। टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अलादीन कि इन दोनों की फाइट में ज़्यादा किल्स स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स लेकर जाने वाली है। लेकिन स्टॉलवर्ट जिस एरिया से मूव कर रही है वहाँ पर उन पर प्रॉब्लम आ सकती है। ओपन एरिया में स्टॉलवर्ट को कवर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उनको यहाँ पर फिलहाल कोशिश करनी है कि पहले किसी तरह से हार्ड कवर ढूंढें। अगर वो हार्ड कवर को नहीं ढूंढते, जिस तरह से आप देखें ओपन में प्राउंड डाउन है, तो शायद उनको एक आसान हदफ बनाकर उनको जो है एलिमिनेट किया जाए इस मैच से। लेकिन RSG आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए नजर आए कि हमें उनकी तरफ से जो है किसी भी तरह से फाइट में जूझा नहीं जाता। लेकिन क्यों फीड में देखें आप तो इस वक्त डाकू अपने आप को अपने ग्रेनेड से एलिमिनेट करते हुए नजर आते हैं। वैम्पायर एस्पोर्ट्स वर्सेस 52 एस्पोर्ट्स की फाइट बनती हुई नजर आई जहाँ पर 52 के आवाज भी डाउन जाएंगे। आई बिलीव यहाँ पर एक स्लैमन जरूर दिया गया होगा। अब ये स्लैमन 52 की तरफ से दिया गया या वैम्पायर की तरफ से दिया गया ये तो हम देख नहीं पाए, लेकिन स्लैमन के चलते ही इसी तरह से हमें जब वो जल्दी एलिमिनेशन जब फास्ट एलिमिनेशन जब दिखाई देती है। लेकिन REGAN.S के बाकी प्लेयर्स भी आ चुके हैं। यहाँ पर गलती की जाती है लाइटनिंग की तरफ से एंड उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। B2B के प्लेयर यहाँ उनको नॉकडाउन कर देते हैं। बिल्कुल RSG को एक सेफ हेवन की ज़रूरत थी और हार्ड कवर में आना चाहते थे कि रिस्की मूव ज़रूर रहा। अभी के लिए एक प्लेयर घुटनों पर आ चुके हैं, 3 किल्स बैक टू बैक के पास अभी तक मौजूद है। RSG अपने दोनों के दोनों प्लेयर्स को गवा चुकी है। नेट का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है लेकिन बैक टू बैक के अकेले प्लेयर है। बैक एंड से मजीद प्लेयर आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बैक एंड पर इनफैक्ट कंपाउंड के अंदर मौजूद भी हैं जो मल्टी स्टोरी बैक एंड के ऊपर बिल्डिंग रहती है। लेकिन आउटसाइड द प्ले जोन फाल्कन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स एलिमिनेट होते हुए RSG DD का नेट जाता है और पोलो को नॉकडाउन करने में कामयाब हो जाते हैं। बैक टू बैक अब रश का सामना उनको करना पड़ेगा। एक प्लेयर इनके भी मजीद 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। बैक टू बैक अभी भी सामना अच्छा कर सकती है लेकिन RSG 2 प्लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से अब वो सेफ हेवन अपने लिए ले चुके हैं। लेकिन 2 प्लेयर्स का ज़्यादा देर तक सर्वाइव करना और ऐसे जोन में इस जगह के ऊपर जहां पर 6 से 7 मुख्तलिफ टीम्स की आंखें उन पर जमी हो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहेगा। लेकिन टीम मॉफ ईस्पोर्ट्स हमारे सामने है और इनके बिल्कुल सामने वाइल्ड कैट्स का स्क्वाड मौजूद है। नेट्स का इस्तेमाल इनकी तरफ से भी किया जा रहा है। ज्यादा एलिमिनेशंस अलादीन नेड्स और यूटिलिटीज आप अगर नोटिस करें इस मैच में बहुत इस्तेमाल की जा रही हैं। गन फाइट्स, क्लोज फाइट्स उस तरह से नहीं देखने को मिल रही। बहुत अच्छा स्प्रे, बहुत खूबसूरत स्प्रे लेकिन नॉक नहीं कर पाते। देखिए 5वां सर्कल आ चुका है, अभी तक 50 प्लेयर्स अलाइव है हमारे सामने। काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया जो है इस वक्त बना हुआ है पूरे सर्कल के अंदर, इसीलिए ग्रेनेड्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। इस्तांबुल वाइल्डकैट्स और इस वक्त डेनिज़बैंक वाइल्डकैट्स बन चुकी है। वो इस वक्त ग्रेनेड्स फेंकते हुए नजर आएंगे। टीम मोर्फ के पूरे स्क्वाड को एलिमिनेट किया जा सकता है सिर्फ ग्रेनेड्स के चलते, क्योंकि मोर्फ के पास एरिया ही नहीं है यहाँ पर खेलने का। एंड बैक साइड से लक्स एक स्प्रे देते हैं, मोर्फ के रॉकी डाउन हो जाएंगे। आखिरी प्लेयर इस वक्त से मौजूद, रिवाइवल की कोशिश की जाएगी लेकिन शायद ये ग्रेनेड उनको इस मैच से बाहर भेज देगा। लेकिन ग्रेनेड आता है, डैमेज प्लेयर को थोड़ा बहुत पड़ता जरूर है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि डेनिज़बैंक के प्लेयर इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं। 3 नॉक्स निकाले थे उन्होंने और इसी के साथ साथ फ्लैंक पे मौजूद प्लेयर लक्स यहाँ पर ये किल भी कंफर्म
कर्ज आते हैं, ऐसा लग रहा है कि लक्स नहीं, वो सारे के सारे किल्स बटोरे जरूर हैं, लेकिन डजंट मैटर, इस्तांबुल वाइल्डकैट्स अपना सामने का एरिया क्लियर कर चुके हैं, अब उनको कवर भी मिल जाएगा। और जहां पर ओपोनेंट टीम इतनी बड़ी मुश्किल में जूझ रही थी, वहीं पर ये टीम अब बासानी खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनको चैलेंज करने के लिए कोई भी टीम आसपास मौजूद नहीं है। लेकिन किल फील्ड में सोल के हेक्टर नॉक होते हुए नजर आए हमें। गॉब्लिन और अक्षत हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है, हेक्टर यहाँ पर जो वो काफी पीछे मौजूद है, और हेक्टर को यहाँ पर देखें आप तो वो ब्लीड आउट भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रेनेड्स फेंके जाएंगे एक्शन की तरफ से। गॉब्लिन इन ग्रेनेड से बचते हुए नजर आएंगे। एक ही कंपाउंड में दो प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन सोल वर्सेस एसटीई की फाइट में सोल की गॉब्लिन फिर से नॉक हो जाते हैं। ओके, और रश आता हुआ, एक ही प्लेयर मौजूद है, एक प्लेयर को गिराने में कामयाब टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्शन आएंगे, एक्शन घुटनों पर लेकर आ जाते हैं अक्षत को एलिमिनेट भी कर दिया जाता है। टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स के टॉप एलिमिनेट हो चुके हैं। सो 3 मैन स्टैंडिंग स्क्वाड वर्सेस टीम सोल के गॉब्लिन नॉकडाउन है, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। आखिरी प्लेयर टीम सोल को रिप्रेजेंट करते हुए अभी तक सर्वाइव करे। जस्ट लुक एट द मिनी मैप, क्या ही क्राउडेड सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है। इट्स अ कंप्लीटली बैड ब्लड अमंग्स दिस लॉबी, लेकिन टीम वीपीई के प्लेयर्स रिज को होल्ड कर रहे हैं फिलहाल, और रिवर पर जितने प्लेयर स्कोर मौजूद हैं, पानी के अंदर हैं, उनके ऊपर अपने फ्रैग्स स्कोर करने की कोशिश की जा रही है। दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, बिल्कुल लॉबी से अलग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन प्लेयर्स को पकड़ा जो कि ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके हाथ बंधे हुए थे, और एंड जस्ट लुक एट दैट, टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स 8 किल्स ऑलरेडी स्कोर कर चुकी है। आई थिंक सो इस लॉबी के अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ किल्स अभी तक इनके पास ही मौजूद रहेंगे, लेकिन बैक टू बैक के प्लेयर्स बिल्कुल सामने मौजूद है। टीम 4 राइवल्स के प्लेयर एक बैक स्टैप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए जोन के अंदर किसी ना किसी तरह अपनी जगह बनाना चाहते हैं। टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के प्लेयर भी मौजूद है, एक प्लेयर को एलिमिनेट भी करते हैं। टीम एटॉन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर एलिमिनेट करते हैं बैक टू बैक एक प्लेयर को, लेकिन बैक टू बैक अपने ही प्लेयर को नेट से मार देते हैं। इनफैक्ट 2 प्लेयर को नेट से ही मार देते हैं। What just happened? क्या किल्स नहीं देना चाहते थे वो लादेन? I don't think so कि सिचुएशन में आप किल डिनाई करना चाहेंगे। शायद यहाँ पर जो एक उनकी तरफ से मैं कह सकता हूँ कि एक गलती की गई है, या कह लें कि एक गलत मूव उनकी तरफ से उठा लिया गया जो वो नहीं चाहते थे कि वो उठाएं। लेकिन वहीं पर फाइट का सिलसिला मजीद चलता रहेगा। क्या ना टीम हमारे सामने रह जाएंगी ख़वातीन और हज़रात, और 29 प्लेयर्स अभी भी जिंदा हैं। टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स बहुत किल्स उठा ली है, अब सर्कल में आने के लिए उनको टीम यूएससी को क्लियर करना पड़ेगा, और यूएससी अगर मौका देती है, एक भी उनकी तरफ से गलत मूव किया जाता है, तो वैम्पायर ईस्पोर्ट्स बिल्कुल उसको खातिर में लाने से पीछे नहीं हटने वाली। और आप देखेंगे यूएससी वो डिनाई कर रहे हैं, वो इस एरिया को जो वो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, अबैंडन कर रहे हैं, और शायद अब वीपी को एक बहुत ही आसान एंट्री मिल जाए। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनली हम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स को एक चैलेंजिंग सिचुएशन में देखेंगे, लेकिन जहाँ पर उन पर चैलेंज आया, जो टीम चैलेंज देना चाह रही थी, वो फॉल बैक कर जाती है, एंड एक अच्छा सर्कल में इंट्रेंस उनको मिल जाएगा। बट एटम ईस्पोर्ट्स के साथ फाइट लेती हुई टीम डोनट्स यूएससी इस वक्त नजर आ रही है हमें। डोनट्स यूएससी के प्लेयर कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर भी मौजूद हैं, तो ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होंगे। वहीं पर होल्ड बनाने के साथ साथ उनको अपने आसपास की टीम जो सर्कल में आना चाह रही है, उनको रिजल्ट उठाने पड़ेंगे, और यहाँ वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और वीवो क्यू का स्क्वाड मौजूद है हमारी स्क्रीन के ऊपर। अब वो मरहला आ चुका है जहां पर आपको फाइट करनी है फॉर द ग्लोरी, फॉर द चिकन डिनर। अगर आप इस मैच के अंदर, इस इवेंट के अंदर ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं, तो इस मैच को आपको लेकर जाना है। अगर मैरिट सेट करना चाहते हैं, लेकिन खूबसूरत नेड एलिमिनेशन स्कोर की जाती है। 11 किल्स ऑलरेडी वीपी के पास आ चुके ऑलरेडी, एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून। एटॉन ईस्पोर्ट्स के एक प्लेयर अभी तक सर्वाइव करते हुए कंपाउंड के अंदर स्टेल्थीनेस का मुजाहिरा कर रहे हैं। यूएसजी के प्लेयर्स भी 5 किल्स लेकर जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके चारों के चारों प्लेयर्स भी सर्वाइव कर रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट एक चीज निकल कर सामने आई है कि अगर आप किसी ना किसी तरह अपने प्लेयर्स को सर्वाइव करवा लेते हैं चारों के चारों, तो किल्स आप निकाल ही लोगे। और बॉक्स गेमिंग अगर आप देखें तो वो भी अच्छी इस मैच में कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यूएसजी शॉटगन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यूएसजी के प्लेयर्स एटॉन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर को एलिमिनेट करना चाहते हैं। यूटिलिटीज थ्रो की जा रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक भी प्लेयर इस फाइट के अंदर ना गवाया जाए। नेड हिट करता है एटॉन ईस्पोर्ट्स के एक और मजीद प्लेयर घुटनों पर आते हुए, और इस मैच से इंस्टेंटली एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी भी सातों की सातों टीम सर्वाइव कर रही है। 18 प्लेयर्स अभी भी लॉबी के अंदर जूझते हुए। टीम सोल के भी अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। बॉक्स के प्लेयर मौजूद हैं। एक और मजीद नॉक निकालने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं निकाल पाएंगे। टीम सोल के आखिरी प्लेयर ओमेगा मौजूद हैं, और बिल्कुल ब्रोकन वॉल के नजदीक प्रोन गेम खेलते हुए बैक एंड से इनको बचना पड़ेगा। स्मोक्स उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वाइवल निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जी, सर्वाइवल निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रेंड देखें आप किस तरह से यहाँ पर सेट होता हुआ नजर आएगा। तमाम टीम्स फाइट के अंदर जुड़ती नजर आएंगी। ओमेगा आज सारी फाइट के अंदर फोन डाउन होकर लग रहे हैं सर्वाइव, लेकिन बॉक्स के प्लेयर यहाँ पर डैमेज खाते हुए एसटी के हाथों, एसटी के प्लेयर्स यहाँ पर नॉक करते हुए नजर आएंगे। बॉक्स से ब्रेक एमवीपी को किल कंफर्म भी करना चाहते हैं, बट ओमेगा वो इस वक्त बिल्कुल एसटी के प्लेयर नजर आते हैं, और किल कंफर्म भी किया जाता है इंस्टेंटली। टीम सोल
तीनों टीम्स एक दूसरे के साथ फाइट लेती हुई नजर आएंगी। बैकएंड से थर्ड पार्टी करते हुए हमें टीम सोल के प्लेयर के ऊपर एसटी के प्लेयर नजर आते हैं और किल कंफर्म भी किया जाता है इंस्टेंटली। टीम सोल 5वें पतन पर इस मैच से 3 एलिमिनेशन के साथ बाहर हो जाती है, लेकिन फिलहाल बॉक्स वर्सेस यूएससी वर्सेस एसटीई एंड वैम्पायर स्पोर्ट्स, ये 4 टीम हमारे सामने मौजूद है। चिकन डिनर की दावेदार इस वक्त वैम्पायर स्पोर्ट्स मौजूद है, 19 किल्स उनके पास मौजूद है। ओके, का एक अलग ही रंग दिखा रही है ये टीम। वो जो बात मैंने कही थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक टीम सिर्फ इस लॉबी के अंदर डोमिनेशन ना दिखा पाए, उसको बिल्कुल गलत साबित करती हुई टीम वीपीई, जस्ट लुक हाउ गुड दे आर। दोनों के दोनों प्लेयर्स उस घर को रैप राउंड करते हैं, लेकिन टीम बॉक्स गेमिंग का अभी तक इनको सामना करना पड़ेगा। टीम स्टॉलवर्ट एक और फॉलोइंग नेट थ्रो कर रहे हैं, नेट्स की भरमार की जा रही है टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स के। अभी तक 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। बॉक्स गेमिंग का पूरा फोकस टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स की तरफ जाता हुआ, लेकिन वीपीई के प्लेयर्स इसी चीज का फायदा उठाते हुए कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स ऑलरेडी हैव बहुत अच्छे किल्स उनके पास मौजूद है, 10 से ज्यादा किल्स वो स्कोर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 किल्स स्कोर कर चुके हैं। इनफैक्ट क्या ही खूबसूरत परफॉर्मेंस वीपीई की तरफ से। आने वाले मैचेस के अंदर ये स्क्वाड काफी ज्यादा नजरों में आने वाला है, लेकिन अभी के लिए यूएसजी के आखिरी प्लेयर सर्वाइव करना चाह रहे थे, लेकिन उनका भी किल वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के प्लेयर लेकर जाते हुए टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स के प्लेयर सामने आएंगे। पिका को स्पॉट डाउन करने में कामयाब, पिका को नॉक डाउन किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तरफ से। बिल्कुल जी, वैम्पायर स्पोर्ट्स यहाँ पर एक और किल कंफर्म करते हुए नजर आती है। अपने बैकपैक के अंदर 23 किल्स की टीम कंफर्म कर चुकी है। फ्लिपिक की तरफ से बोनस निकाला जाएगा, टीम बॉक्स के ऊपर पुश किया जाता है। आखिरी प्लेयर मौजूद, उनका भी किल कंफर्म करते हुए, और 25 किल्स आई थिंक ये टीम जो वो कंफर्म करती हुई नजर आई है। 25 किल्स हमने Did you hear the audience? PUBG मोबाइल वर्ल्ड इनविटेशन में आदि कहीं जाकर इस तरह हो सकता है किसी भी मैच में। ओह माय गॉड, वैम्पायर ईस्पोर्ट्स ने अलादीन हैरान कर दिया है और मेरे ख्याल से परेशान कर दिया है मुझे भी, आप सबको जो लोग देख रहे हैं। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स ने वो कर दिखाया है जो कि इस स्टेज पर पहले ही मैच में, जहां पर लैन का प्रेशर हो, जहां पर आपके ऊपर प्रेशर हो कि हमसे भी अच्छी टीम्स इस लॉबी के अंदर मौजूद है, इतने मुश्किल मैच में इतनी जोन की वजह से जो मुश्किलात इन्होंने उठाई है, उनको साइड पर रखते हुए 20 स्किल्स कर लेकर जाना, मेरे ख्याल से दैट इज समथिंग अमेजिंग, और जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता कोई। आई थिंक सो 19 स्किल्स, जहां पर हमें ऐसा लग रहा था कि 6 मैचेस में स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा इस लॉबी के लिए, लेकिन देखते हैं क्या सिचुएशन बनती हुई हमें नजर आती है। अभी के लिए वैम्पायर ईस्पोर्ट्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी सर्वाइव कर रहे थे। बॉक्स गेमिंग को खासकर मैं दाद देना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को इस मैच के अंदर सर्वाइव करवाया, लेकिन इन सारी बातें एक तरफ, सारी परफॉर्मेंसेस एक तरफ, वैम्पायर ईस्पोर्ट्स ने जो कर दिखाया दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल। और ऐसा हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार कोई एक स्क्वाड निकल कर लाइक 20 किल स्कोर कर लेगा पहले ही मैच में। देखिए, वैम्पायर स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको याद होगा, रोजक का जो वाटर्स साइड है वहाँ पर संभाला, वाटर्स एरिया को, वहाँ पर 7 किल्स उठाए। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वैम्पायर स्पोर्ट्स के इन 24 किल्स का, वो डोनट्स यूएसजी को भी जाएगा। इस बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मैच रैंकिंग की, जहाँ पर मैच 1 के अंदर 39 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स यहाँ पर ये टीम लेकर जा चुकी है, और वहीं पर यूएसजी सेकंड स्पॉट पे मौजूद विद 16 पॉइंट्स। लुक एट द डिफरेंस, आदि डबल से भी ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर निकाले हैं सेकंड प्राइवेट टीम के मुकाबले में। और अगला बेशक ये टीम मैच मिस भी कर दे तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे। थर्ड स्पॉट पे मौजूद है टीम स्टॉलवर्ट स्पोर्ट्स, 5 किल्स उनके पास ही मौजूद हैं। एग्रेशन तमाम टीम से मैं कहता हूँ कहीं ज्यादा इस टीम ने दिखा दिया, और इस बारे में हम बात करेंगे जरूर, लेकिन बात करते हैं फोर्थ स्पॉट पे मौजूद बॉक्स गेमिंग की। 14 टोटल पॉइंट्स उनके पास ही मौजूद हैं। एग्जैक्टली, और टीम सोल ऑन द 5th स्पॉट फ्रॉम इंडिया, 9 पॉइंट्स लेकर जाने में कामयाब। टीम एटॉन ईस्पोर्ट्स 7 पॉइंट्स लेकर जाते हैं, 5 किल्स मौजूद हैं। वीवो का जो स्क्वाड है 7th स्पॉट पर 6 पॉइंट्स लेकर जाने में कामयाब ओवरऑल इस मैच में। DWG डैम1 गेमिंग विद 5 पॉइंट्स, 1 किल रहेगा और 4 प्लेसमेंट पॉइंट्स अपने बैक में लेकर जाने में कामयाब। सो पहले स्पॉट को छोड़कर ऑलमोस्ट जितने भी टॉप 5 के अंदर टीम्स हैं वो काफ़ी क्लोज उन्होंने पॉइंट स्कोर किए हैं, और वैम्पायर ईस्पोर्ट्स ने बहुत किल छीने हैं, बहुत से प्लेयर्स को सर दर्द उन्होंने लगवा दिया है, और आई थिंक सो काफ़ी प्लेयर्स की अब जो है वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। आई थिंक सो वो लैन के अंदर वो होगा ना कि जब एक टीम 19-20 किल्स करके लेकर जाती है तो पूरी की पूरी लॉबी उनकी तरफ मुड़ कर देख रही होगी कि भाई ये क्या किया,
ये मतलब तुम लोगों ने किया क्या है हमारे साथ। सो वो वाले सीन्स जो है वो बना दिए जा चुके हैं वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, लेकिन इस डोमिनेशन को कंटिन्यू रखना एक बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। एंड इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव अलादीन इज कि वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के लिए कहीं ना कहीं अगला मैच चैलेंजिंग होने वाला है। बिल्कुल जी, वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के लिए अगला मैच चैलेंजिंग इस तरह से भी हो सकता है कि अब तमाम लॉबी की नज़र उन पर होगी और Exactly. लेकिन फिलहाल आप देखें कि थोड़ा सा ज़रा मैच की तरफ वापस जाते हैं। अगर वहाँ पर यूएसजी की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा ही ईजी एंट्रेंस दे दी टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स को, मुझे उस चीज़ पर बिल्कुल भी, मैं अभी भी वो सोच कर हैरान हो रहा हूँ कि एक टीम ऑलरेडी इतना कहर मचा रही है, आपने उसको बासानी सर्कल में आने दिया, उसके बाद उस टीम ने जब सर्कल में एंट्री ली तो उन्होंने मजीद कहर बर्पा किया। उन 7 से 8 नंबरों को, जो 8 से 9 नंबर से जो कि वोटर साइड पर उस टीम ने बटोरे थे, उसको वो 20 से 24 तक ले जाते हैं और उस टाइम पर बॉक्स उनके ऊपर पुश करती है, उस टाइम पर यूएससी को उनकी तरफ से एलिमिनेट किया जाता है। तमाम टीम्स को यहाँ से जो है वो खदेड़ती हुई टीम नजर आती है और एक एक करके किल्स वो बटोरे जाते हैं अपने बैकपैक में। हर चीज ऑन पॉइंट थी टीम, इस टीम की, वैम्पायर स्पोर्ट्स की। थाईलैंड से ये टीम आई है और आकर इन्होंने जब वो कमाल दिखा दिया अपना। आप इनकी कोऑर्डिनेशन की बात करें, इनकी सिनर्जी की बात करें, इनका जो ग्रेनेड्स का यूजेज, यूटिलिटी यूजेज था वो बहुत अच्छा था। कहीं पर भी हमने ऐसा नहीं देखा कि ये टीम जो वो किसी टीम पर पुश करते हुए एक नॉक भी दे जाए। नॉक तक नहीं दिया गया इनकी तरफ से। इनफैक्ट जब हमने देखा एटॉन ई-स्पोर्ट्स के जो अकेले प्लेयर उस घर के अंदर मौजूद थे, उनको भी एलिमिनेट इस टीम की तरफ से नेट्स का इस्तेमाल कर किया गया। सो ये किसी को भी किसी भी प्लेयर को इनफैक्ट इनकी तरफ से अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा रहा कि मौके का फ़ायदा उठाएंगे, चलो अच्छा ये प्लेयर यहाँ पर इस घर में अकेला मौजूद है तो एक साथ रश करेंगे, इस प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे। नहीं, उनकी तरफ से हर जगह पर, हर प्लेयर पर, हर टीम पर एक ही स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की जा रही है। एंड आई थिंक सो इसी की वजह से ये टीम 24 किल्स कर लेकर गई है। बिल्कुल मौका नहीं दिया गया बाकी टीम्स को खेलने का। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि पीएमडब्ल्यू जैसे लेवल पर यहाँ इतनी बड़ी डोमिनेशन जो है दिखाई जा सकती है इसकी टीम की तरफ से। लेकिन चलें फॉरएवर्स की थोड़ी सी बात करते हैं। आपने देखा कि अर्ली एलिमिनेशन उनके प्लेयर्स को हमने होते हुए देखा। उसके अलावा निग्मा गैलेक्सी की अगर बात की जाए, ये भी एक टीम है जो कि थर्ड स्पॉट पर आई थी पीएमजीसी के अंदर, और उनकी तरफ से भी आगाज में ही 2 प्लेयर्स अपने लूज किए जाते हैं। तमाम वो टीम जिनको मैं सोच रहा था कि हाँ मैं इनको इससे पहले देख चुका हूँ ग्लोबल चैंपियनशिप में, ये यहाँ जो है वो कुछ कमाल करेंगी, उन सबको हमने अर्ली फाइट्स में जूझते हुए देखा। वैम्पायर स्पोर्ट्स भी अर्ली फाइट्स में जूझती जरूर है, बट दे मेड श्योर कि वो किसी भी तरह से एलिमिनेशन वाली साइड पर ना आए। नॉक तक नहीं डील किए जाते। साथ अगर हमें नॉक्स दिखाए जाए वैम्पायर स्पोर्ट्स के तो शायद हमें 4 से 5 ही नजर आए, इससे ज्यादा नजर नहीं आने वाले। 4-5 भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने इस मैच को खेला। लेकिन अगला मैच किस तरह से अपने इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखती है ये टीम, फिलहाल जिस तरह का खेल ये दिखा चुके हैं, अगले मैच तक एटलीस्ट अगले 2 मैचेस तक इनको कोई बाकमाल खेलने की जरूरत तो नहीं है, बट ऑब्वियसली ये एक अच्छा मौका है। जितना ज्यादा से ज्यादा कैपिटलाइज कर लें, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स जनरेट कर लें, जितना अपनी पोजीशन को जो है वो मुस्तहकम किया जा सके इनकी तरफ से, उतना ही इनके लिए बेहतर होगा। एग्जैक्टली अलादीन, वही बात है कि आने वाले मैचेस इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि एरांगल के अंदर जैसी आप डोमिनेशन दिखा पाते हो, ऑब्वियसली आप वैसी डोमिनेशन शायद मिरामार में ना दिखा पाओ, क्योंकि उसकी दूसरी वजह यही है कि आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि बाकी जो लॉबी है उनकी नज़रें ऑब्वियसली उन पर जमी होंगी। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स को अब ढूंढा जाएगा कि ये स्क्वाड अगले मैदान में कहाँ पर मौजूद है और क्या है इनकी स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट जो और एक और चीज़, जो टीम के कोचेज हैं जो इनके साथ आए हुए हैं, आई थिंक सो वो इस चीज को जरूर हाईलाइट करने वाले हैं। कोच शायद यही कह रहे होंगे कि इसकी तैयारी तो मैंने भी नहीं करवाई थी जो तुमने कर दिया, और मे बी कल आउट ऑफ सिलेबस ब्रेकफास्ट के टाइम पे तमाम टीम्स कहेंगी कि वी आर हैविंग व्हाट टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स इज हैविंग राइट नाउ, तो हमें भी अब वही जो ब्रेकफास्ट देते हैं। लेकिन चलें हाईलाइट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों, और एक्शन को दोबारा से देखते हैं कि किस तरह से इस पूरे ही मैच में जो वो डोमिनेशन दिखाई गई। आगाज देखें डोनेट स्पोर्ट्स की तरफ से किया जाता है, और टीम निग्मा गैलेक्सी जो कि सबसे पहले इस मैच से एलिमिनेट हुई थी, उनके ऊपर किल्स बटोरे गए। लेकिन टीम वीजीएस की बात करें, वो भी हमें कुछ प्रॉब्लम से दो चार होती हुई नजर आई। लेकिन डोंग जियाबाओ जिस तरह से एग्रेशन दिखाती हुई नजर आती है, और रीगन्स को भी हमने देखा कि अर्ली फाइट्स में उन्होंने काफी किल्स बटोरे थे। जी बिल्कुल, और टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स, एक्शन की आपने बात की तो एक्शन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। टीम सोल के 2 प्लेयर्स को गिराते हैं इस मैच से, और टीम सोल को डाउन टू 2 मैच स्टैंडिंग करते हैं। लेकिन मैं दाद दूंगा ओमेगा को, जैसे उन्होंने सोलो सर्वाइवल अपना कुछ हद तक यकीनी बनाया, टॉप 5 में अपने स्क्वाड को लेकर आने में कामयाब हो जाते हैं। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स खून चूसते हुए इस सारी लॉबी का सारे के सारे एग्रेशन को अपने अंदर समाते हुए चारों के चारों प्लेयर्स 7th फेज ऑफ द सर्कल में सर्वाइव
कर रहे थे। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के एंड पर आकर इनफैक्ट आखिरी जो 2 से 3 मिनट्स थे उससे पहले इनके 2 प्लेयर्स एलिमिनेट होते हैं, लेकिन जो बाकी के 2 प्लेयर्स हैं उन्होंने बॉक्स गेमिंग का बहुत अच्छे तरीके से सामना किया। सो ज़्यादा बातें हम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स पे इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंसेज इस स्टेज पर आना और इनफैक्ट पहले दिन आना, वो भी लैंड में, किसी और कंट्री में, किसी और एक एटमॉस्फेयर के अंदर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर औकात टीम्स को 1 से 2 मैचेस लग जाते हैं इस सारे जो सारा सीन होता है उसको अपने अंदर समाने में, एब्जॉर्ब करने में थोड़ा उनको टाइम लग जाता है, थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लग जाता है। लेकिन वैम्पायर ई स्पोर्ट्स आई थिंक सो इसके पीछे जो प्रैक्टिस है, जो माइंडसेट है, मैं उसको दाद ज़रूर दूंगा। व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर द नेक्स्ट मैचेस? अलादीन, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा खासकर वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के बारे में, 52 के बारे में, टीम सोल के बारे में। ये तीनों ऐसे नाम हैं, आपको क्या लगता है आने वाले मैचेस के अंदर, इनफैक्ट अगले ही मैच के अंदर, व्हाट डू यू बिलीव? जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन। देखिए, वैम्पायर ई स्पोर्ट्स से तो मैं पहले तो मैं उम्मीद इतनी ज़्यादा लगा नहीं रहा था फर्स्ट मैच में, लेकिन अब देखेंगे पहले मैच के बाद वो ऑब्वियसली फेवरेट्स तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई बहुत शानदार मैच अगला इनका नहीं निकलने वाला। मैं किसी भी तरह से कास्टर कर्स नहीं लगा रहा खवातीन और हज़रात, एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि एक बहुत अच्छा मैच निकालने के बाद, इतना अच्छा मैच निकालने के बाद थोड़े बहुत आप भावुक तो हो ही जाते हो, थोड़े बहुत आप ओवर कॉन्फिडेंट तो हो ही जाते हो, लेकिन ऑब्वियसली इसको अवॉइड करने के लिए उनके पास कोचेस मौजूद होंगे। लैंड का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है आपको, लेकिन उस प्रेशर को भी जिस टीम ने संभाल कर इतने किल्स निकाले हैं, शायद वो अगला मैच अच्छा निकाले, बट बहुत ज़्यादा अच्छे की मैं उम्मीद नहीं लगा रहा। किसी और टीम से मेरी उम्मीद ज़रूर है, जिस तरह से फॉर राइवल्स को मैं कहूँगा कि वो एक कमबैक हमें करती हुई नजर आएगी। सेकंड मैच के अंदर एक अच्छा मैच दिखाया जाएगा उनकी तरफ से, बॉक्स गेमिंग की तरफ से भी प्रॉमिस दिखाई जाएगी। बट अगर मुझे एक टीम पिक करना हो तो मैं शायद फॉर राइवल्स के साथ जाना चाहूँगा फॉर द नेक्स्ट मैच, कि वो अगले मैच में कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। आदि मैं आरजीएस को देखना चाहता हूं कि आरजीएस जैसी डोमिनेशन उन्होंने पेल में दिखाई है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एग्जैक्टली आरएसजी, सॉरी फॉर दैट गाइस, और आरएसजी ने जैसी डोमिनेशन दिखाई है चाइनीज़ मेटा को, ऑब्वियसली वो जानते हैं, और चाइनीज़ प्लेयर्स ऑब्वियसली मशहूर है पूरी दुनिया में ग्लोबली कि जैसे वो खेलते हैं अपने एग्रेशन की बेसिस के ऊपर, अपनी गन पावर की बेसिस के ऊपर। सो आई रियली वांट टू सी दैट इन फ्रॉम देम। लेकिन अभी के लिए टॉप डैमेज डीलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। वीपीई ऑलरेडी 3604 का डैमेज रजिस्टर कर चुकी है, बहुत अच्छा सामना किया गया यूएसजी की तरफ से, 2455 का डैमेज रजिस्टर करने में कामयाब, 8 किल्स कर लेकर जाते हैं। लेकिन बाकी जो लॉबी है उसकी तरफ से कोई एक्सेप्शनली डैमेज डील नहीं किया गया अलादीन। बिल्कुल सी, बाकी लॉबी को मौका ही नहीं दिया गया डैमेज डील करने के लिए। एसटी की तरफ से और यूएससी की तरफ से और वैम्पायर स्पोर्ट्स की तरफ से ही वो तमाम डैमेज जब वो होल्ड किया जाता है। लेकिन देखें आप कहीं ना कहीं जब वो 700 डैमेज भी एक अच्छा डैमेज है, बेहतर डैमेज ज़रूर है, अच्छा नहीं कहूँगा इसको मैं। बीटीबी की तरफ से भी 800 डैमेज दिया जाता है, जो कि बेहतर ज़रूर है, बट आपको अगर आप किल्स का जितना नंबर अपने खाते में दर्ज करते हैं उसी हिसाब से आपका डैमेज भी बढ़ता हुआ नजर आता है। ये बात तो सबको पता ही है, लेकिन मौका नहीं दिया गया किल्स लेने का। दिस इज़ द रीज़न वाई डैमेज भी इतना ज़्यादा नहीं है। और रोजक के एरिया को एक टीम की तरफ से डोमिनेट करना हम पहली बार देख रहे हैं। एक ऐसा रीजन जहां पर क्लस्टर बना होता है, जहां पर डिफरेंट टीम्स डिफरेंट फाइट्स में एट द सेम टाइम जूझ रही होती हैं, वहां पर एक ही टीम का डोमिनेट करना मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस है, और मैच स्टार्ट होने से पहले भी मैंने ये बात की थी कि कभी कभी दूसरी अटेम्प्ट वाला भी फेल हो जाता है और कभी कभी पहली अटेम्प्ट वाला भी टॉप कर जाता है। तो यहाँ पर वैम्पायर स्पोर्ट्स ने पहली अटेम्प्ट में ही टॉप कर दिया, और इस पर जो है वो उनको दाद मिलती रहेगी। लेकिन अगला मैच मिरामर का मैच है, एक्सटेंसिव मैप है, उस मैप में ड्रॉप्स चेंज होंगे, सर्कल चेंज होगा, हर चीज़ बदलने वाली है। लेकिन क्या पॉइंट्स टेबल पर टीम्स भी बदलेंगी, इसका इंतज़ार आदि मैच के आगाज के साथ शुरू होगा और इख्तिताम के साथ ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल अलादीन, और इस चीज़ का इंतज़ार तो हमें भी है। आई रियली वांट टू सी केओस, मैं केओस देखना चाहता हूँ, और केओस में मैचेस में तो हो ही रहा है, लेकिन लीडर बोर्ड के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाले मैचेस के अंदर कोई ऐसा स्क्वाड हो जो कि टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के एटलीस्ट अगर उनको ओवरटेक नहीं कर पाता तो थोड़ा नज़दीक ज़रूर आ जाए, ताकि कंपटीशन मज़ीद बढ़ाया जाए। ऑब्वियसली सारे जितने व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो टीम है, जिनको वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करे। ऑब्वियसली ऐसा होता हुआ भी नज़र आएगा, एंड आई रियली प्रेफर दैट। लेकिन कंपटीशन को मज़ीद, एंड मेरा ख्याल है इनफैक्ट ये होना है अगले मैच के अंदर कि कोई और टीम अगले मैच के अंदर